Okay. So on that note, we will start the chapter ecosystem. Many things that I have already taught yesterday, I will be using that again and again into this chapter. Ecosystem कल पढ़ाया था क्या है बच्चा लोग? There biotic things are there. Biotic plus there are abiotic thing, and there is a relation between them. Okay, remember that I have said you there will be a relation between. They are interconnected. They are interconnected with each other, and that is only what the ecosystem. दोनों एक दूसरे से how they are related. This is only the ecosystem. Ecosystem देखो, there are some natural, there is some natural way. Okay, it's just simple सा चीज है. You have to just know. यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, but then also you should know what is this natural. Natural, it can be a terrestrial. Terrestrial, that means it is on the land, or it can also be aquatic. Aquatic, this is simple. You know terrestrial क्या क्या है. there is a ecosystem. terrestrial कहाँ कहाँ मिलेगा तुमको? फॉरेस्ट में मिलेगा. you will be getting in the forest, you will be getting the grassland. तो ये बच्चा वाला चीज है, वेरी सिंपल थिंग. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड नो what is actually we are talking about. and aquatic में आ जाएगा तुम्हारा लेक, आ जाएगा पॉन्ड, आ जाएगा रिवर, आ जाएगा ओशियन, आ जाएगा. दिस ऑल which is natural. But there are certain artificial as well. artificial मतलब it is made by human being. human being क्या क्या बना सकता है? human being garden बना सकता है. they can make the garden. Okay, we are making the garden by our own. ठीक है, nature is not making, we are making garden. और हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग aquarium बना सकते हैं. सिंपल aquarium बना सकते हैं. तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स. ओके, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू शुड नो. तो ये तो हो गया जस्ट एग्जांपल कि तुम्हारा इकोसिस्टम में क्या क्या एग्जांपल है. व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इनटू दिस चैप्टर. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोटिक एंड अबायोटिक एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. एकदम सिंपल. एनी डाउट? अभी तक जो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे. आई होप सो इट्स ओके विद ऑल ऑफ यू. ओके, चलो अब आगे जाते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या है. व्हाट आर दोस बायोटिक कंपोनेंट? एवरीथिंग यू हैव स्टडीड. बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? व्हाट इज दिस बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक मतलब लिविंग. लिविंग क्या क्या है? यू ऑल नो व्हाट आर द लिविंग थिंग. नंबर वन, आई होप सो यू नो प्रोड्यूसर. बोलो तो हु आर प्रोड्यूसर? हु प्रोड्यूस द फूड. एंड डेफिनेटली हु विल प्रोड्यूस द फूड? बोलो तो कौन प्रोड्यूस करेगा फूड को? हु विल प्रोड्यूस द फूड? कौन प्रोड्यूस करता है खाना को? प्रोड्यूस बाय ऑटोट्रॉप्स, है ना? Autotrophs. Okay, yes, yes, Subhojit, correct. Plants. Okay, I have just started. Those who have joined late, for those, is I have just started the chapter ecosystem. I have already taught about ecosystem. There is a biotic and abiotic component. They are related to each other, and we have just started the biotic component. यहाँ पे biotic component क्या क्या है? What are the biotic components which are present there? Like producer. Producer कौन है? जैसे तुमने बताया, as you have just said me, plants. By which process they make the food? What is the name of the process? प्रोसेस का नाम क्या है? फोटो सिंथेसिस. ये सुनो बच्चा लोग, ये तो एकदम बच्चा वाला चीज है, एवरीवन नो. और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है? व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. तो ये सारा चीज क्या हो गया? ये सारा चीज हो गया तुम्हारा अबायोटिक. सो इट शोज दैट बायोटिक, दैट इज प्रोड्यूसर, आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द अबायोटिक टू प्रोड्यूस द फूड. और क्या आएगा सेकंड लेवल पे? क्या आएगा प्रोड्यूसर के बाद? कंज्यूमर, है ना बच्चा लोग? So who are consumer? Who are eating this plant? So consumer का there are several level. First level, second level, third level, like that you can have it. इसको हम लोग primary, secondary और tertiary consumer we can also call. Primary, secondary और tertiary. I'm writing in short, लिख लो. Primary, secondary और tertiary consumer. Okay, I hope so this is clear. First level, second level, third level. I will come to this one. And ultimately 3 नंबर में क्या आ जाएगा after the consumer? डिकम्पोजर. ये एकदम बचपन में एकदम छोटा लेवल पे क्लास 5 6 में एवरी वन ऑफ यू हैव स्टडीड व्हाट इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज डिकम्पोजर. तो लेट मी जस्ट से यू दिस ऑल थिंग विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर चेन. देखो क्या होगा. सपोज यहाँ पे ग्रास. ग्रास को कौन खाएगा? हु विल ईट द ग्रास? सपोज रैबिट. रैबिट खाया ग्रास को. रैबिट को कौन खाएगा? सपोज इट इज ईटन बाय फॉक्स. सपोज फॉक्स. हु इज ईटिंग द फॉक्स? सपोज फॉक्स को अगर कोई बड़ा एनिमल खाया, लेटेड बी द टाइगर. नॉर्मली खाता नहीं है, बट सपोज इफ इट इज ईटन और किल्ड बाय द अदर एनिमल लाइक लायन. एंड तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑटोट्रॉप. ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर. ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर.
ये हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, और इसको अगर डिकम्पोज किया जाएगा बाय द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया विल बिकम ऑलवेज व्हाट, डिकम्पोजर। तो ये है एकदम सिंपल सा चीज दैट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस। बट चलो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, नो क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम हियर, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डेवलप द कंसेप्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द कंसेप्ट। सबसे पहले आएगा ऑटोट्रॉप्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, दिस वन। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, this every level, this is first, second, third, fourth, fifth, five member are there, five member there, so every level is known as what, लिख लो, every level is known as tropic level, TROPHIC, क्वेश्चन में का what is tropic level, so this is known as tropic level, लिख लो फटाफट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, tropic level। और इस चेन को क्या बोलेंगे बोलो तो, इस चेन को क्या बोलेंगे, what we will call this chain, फटाफट बोल दो तो, व्हाट वी विल बी कॉलिंग दिस चेन एज, क्या चीज का चेन है ये, अरे सना सेमी रितु, यस विवियन करेक्ट, यस सुविका, यस शुभो, वेरी गुड, यस लिका, यस लिका। एंड अगर इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन होगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इफ द चेन आर इंटरकनेक्टेड, इफ द चेन इज इंटरकनेक्टेड व्हाट वी विल कॉल देम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम फटाफट आंसर आ गया, आई लाइक इट। सो एक चीज याद रखता, वन थिंग रिमेंबर दैट, यहाँ से क्या टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, नेचुरली, नेचुरली, नेचुरली एज यू हैव सेड मी अबाउट द फूड चेन, नेचुरली फूड चेन इज नॉट पॉसिबल। ये जो हम लोगों ने बनाया ना, ये हम लोगों ने जो बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज यू सेड करेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे फूड chain, we will say it as food chain, but food chain नेचर में पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट ग्रास विल ओनली बी ईटन बाय द रैबिट, रैबिट इज ओनली ईटन बाय द फ्रॉग। ऐसा क्या होगा दैट एवरी डे यू विल बी ईटिंग ओनली राइस एंड दाल, नो, someday you will eat rice dal, someday you will eat biryani, someday you will eat momo, someday you will eat chow, so you can eat so many things here there here there, so everything is interconnected, so that interconnected is known as food web, which is a possible, which is possible, food chain is not possible। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से that whether food chain is possible or not, food chain is not possible in the nature, food chain नेचर में पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल इन द नेचर, ओनली फूड वेब इज पॉसिबल। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट मोर क्वेश्चन कैन कम, टाइप्स ऑफ फूड चेन, चलो यहाँ से लिख लो फटाफट लिख लो, टाइप्स ऑफ फूड चेन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हियर यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन। क्या है, तुमको एक एग्जांपल दे देगा, दे विल बी गिविंग यू अ फूड चेन एंड दे विल आस्क यू इट इज व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं फूड चेन का टाइप क्या क्या है। नंबर वन इज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब क्या है, इट विल बी डीलिंग विद द ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब जो ग्रेज करेगा, ओके, इट विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद द ग्रेजिंग एनिमल। मे बी तुम टाइगर वाला फूड चेन बना सकते हो, और यू कैन ऑल्सो बी गोइंग विद दिस वन like phytoplankton, you know what is phytoplankton, then zooplankton, can anyone say me, or I have to say what is phytoplankton and zooplankton, पता है बच्चा लोग, then it will go into the small fish and then big fish। Phytoplankton, the microorganism, the autotroph microorganism which is floating on the water। ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप होने से मतलब प्लांट के जैसा काम करेगा, प्लांट के जैसा काम करेगा, यस और नो ऑल्सो। वीड को हम लोग नहीं बोलेंगे, प्लैंकटन मींस इट हैव्स टू बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इट हैव्स टू बी, एंड दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एल्गी वीड हम लोग नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से एल्गी एंड वीड, okay, algae normally does not float on the water, they does not, ha, they live in the moist condition, but algae does not come under this, algae and weed does not come under this phytoplankton, ठीक है। yes diatoms will come, yes diatoms will come under this one, yes Kuzo, correct, diatoms will come under this one। so this is phytoplankton, zooplankton, same microorganism but they are heterotroph, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा कौन, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाएगा कौन, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाएगा कौन, बिग फिश। तो इसको हम लोग ग्रेजिंग बोल सकते हैं, ये वाला एग्जांपल भी है ग्रेजिंग का, और तुम्हारा वो टाइगर वाला जो एग्जांपल है दैट ग्रास देन डियर देन टाइगर, दिस इज आल्सो अ ग्रेजिंग। तो क्वेश्चन आ जाएगा, तुमको ये दे देगा और बोलेगा ये किस टाइप का फूड चेन है। तो एक तो हो गया ग्रेजिंग, सेकंड वाला में आ जाओ, सेकंड वाला में आ जाओ पैरासाइटिक, डेफिनेटली यहाँ पे एक पैरासाइट होगा,
पैरासाइटिक। तो इसका एग्जांपल क्या लिख देंगे बच्चा लोग, यहाँ पे कैसे होगा, ट्री, ट्री, उसके बाद आ जाएगा बर्ड, ट्री, ट्री को खाएगा कौन, बर्ड खाएगा, बर्ड को खाएगा कौन, बर्ड को खाएगा पैरासाइट, बर्ड के ऊपर एक पैरासाइट है तो बर्ड को खा लिया कौन, पैरासाइट खा लिया। 3 नंबर में आ जाएंगे, 3 नंबर में आ जाएंगे डेट्रिटस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट्रिटस, नवीन, डेट्रिटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों डेट्रिटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो हम लोग जहाँ पे भी वे एवर वी आर स्टार्टिंग द फूड चेन, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोट्रॉप, ये ऑटोट्रॉप है, फाइटोप्लैंक्टन, he is autotroph, but in the detritus it is the only food chain where we will be starting with the decomposer, यानी कि यहाँ पे आएगा सबसे पहले डेड लीफ, ये डेड लीफ, इट इज नॉट ऑटोट्रॉफ, इट इज डेड, दैट इज दिस इज डिकम्पोजिंग, हम लोग डिकम्पोजर से चालू करेंगे। डेड लीफ को खाएगा कौन, विल बी ईटन बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खाएगा कौन, मोलास्का, मोलास्का, मोलास्का को खाएगा कौन, स्मॉल फिश। तो दिस इज उल्टा, दैट इज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुमको एक एग्जांपल दे देगा सेना, दिस विल बी गिवन होकाली एंड दे विल आस्क यू इट इज व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन। तो 3 टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ा दिया, वन इज ग्रेजिंग, डायरेक्टली ग्रेज होगा यहाँ पे, वन इज पैरासाइटिक, यहाँ पे एक पैरासाइट डेफिनेटली होगा, देयर विल बी वन पैरासाइट, and detritus will be starting from the decomposer. So these are the 3 different type of food chain. Question कैसा आएगा, they will be giving you any food chain and they will ask you it is what type of food chain or what type of relation it is. ठीक है, डन, लिख लो फटाफट। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। अभी तक क्या क्या क्वेश्चन किया बच्चा लोग हम लोगों ने, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दैट टॉपिक लेवल, डिफरेंट टॉपिक लेवल दैट आई हैव सेड यू, different topic level I have said you about the food chain and who is the primary, secondary and tertiary consumer, ठीक है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, you won't be getting question from here but on the base of this one you will be getting the question। अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, जहाँ से इंटरनेट अनस्टेबल, अच्छा नाउ इट्स क्लियर। चलो गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब कौन कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हु विल बी प्रोड्यूसिंग हाउ मच, हु विल बी प्रोड्यूसिंग हाउ मच एनर्जी। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूस होगा एनर्जी, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इफ आई से अबाउट द टॉपिक लेवल, इफ आई से अबाउट द फूड चेन, शुभो सबसे ऊपर है, सबसे आगे, सबसे पहले इन द फर्स्ट कौन रहेगा, डेफिनेटली दे विल बी द ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस द एनर्जी बाय व्हिच प्रोसेस, थोड़ा देर पहले बताया था, दे प्रोड्यूस द एनर्जी बाय व्हिच प्रोसेस, दे प्रोड्यूस द एनर्जी बाय व्हिच प्रोसेस, वो लोग कौन से प्रोसेस से फूड बनाता है, विवियन, बाय व्हिच प्रोसेस दे मेक द फूड, ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड, करेक्ट विवियन, वेरी गुड। तो जो फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, वॉट एवर द एनर्जी विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय whatever the energy which will be produced by the autotrophs, that is autotrophs, वो जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, how much energy it will be produced, उसको हम लोग बोलते हैं GPP, लिख लो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, व्हाट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, वो जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ओके, एनर्जी एंड इट इज एक्चुअली गिवन इन विच यूनिट, वो भी लिख लो, इट इज ऑल्सो गिवन इन विच यूनिट, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझ में आया कि वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, किलो कैलोरी इन दैट स्पेस, हाउ मच स्पेस इट इज यूजिंग, मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में वो कितना किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्वेश्चन में कम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी, क्लियर नबीन, है ना, रुखसाना, क्लियर टू यू, होकाली, ठीक है कविका। तो दिस इज द यूनिट इन विच यू आर मेजरिंग द प्रोडक्शन। बट एक चीज बच्चा लोग, वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज नॉट गिविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, मतलब वॉट एवर इट इज गेटिंग, ओके, इट इज नॉट यूजिंग इट फॉर द ओन। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होगा तुम लोग, अगर सपोज बाई चांस, बाई मिस्टेक ना, कोई डॉक्टर बन गया
हाँ, पढ़ाई तो कोई कर नहीं रहा है, नो वन इज स्टडिंग। तो सपोज बाय मिस्टेक, हाँ, इफ यू हैव बिकम द डॉक्टर, तुमको सैलरी मिल रहा है, सपोज तुम्हारा रिटर्न सैलरी होता है क्या, मे बी सपोज 50,000, बट इन हैंड यू आर गेटिंग सपोज 35,000। तो बाकी पैसा होता क्या, बाकी पैसा ज्यादा है पे, टैक्स में कट गया, इसमें कट गया, उसमें कट गया, दैट इज एक्चुअली फॉर यू ओनली, समहाउ टैक्स कट गया, या ये इसका फंड है, उसका फंड है, इसका फंड है। सेम थिंग यहाँ पे, ये प्रोडक्शन तो इतना किया, बट वो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट टॉपिक लेवल को पास नहीं करेगा, इट विल नॉट बी पासिंग इट टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। वो जो जीपीपी था, दिस जीपीपी माइनस आर, वो अपने लिए कुछ यूज कर रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन, एंड जो रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा क्या, एनपीपी। एनपीपी मतलब फाइनली वो कितना ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला लिख लो, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन इज एनपीपी। क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर, क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर, क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर, न्यूमेरिकल आ सकता है कि तुमको बोल दिया एक प्लांट इन दैट पर्टिकुलर रीजन प्रोड्यूसिंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट वाज रेस्पायरिंग एट दैट रेट, तो बाकी एनपीपी कितना होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू नोट इट डाउन। जीपीपी का मतलब क्या हुआ सेना, वो कितना प्रोडक्शन किया, रेस्पिरेशन वो खुद यूज कर लिया, एंड एनपीपी इट इज गिविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, मतलब प्रोड्यूसर के बाद वो बाकी जो होगा वो किसको पास कर देगा, कंज्यूमर को पास कर देगा, इट विल बी पासिंग टू द कंज्यूमर। याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज गिवन बाय द ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। तो इफ आई से अबाउट द टॉपिक लेवल, क्या था, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर, ये था ना, दिस वाज देयर ना, यस और नो। सो सपोज primary productivity is being produced here and it is given to the next generation, that is primary consumer को दे दिया, it has given to the primary consumer। यहाँ पे क्या होगा, फिर जो सेकेंड टाइम एनर्जी प्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, तो ये एनर्जी किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, it has given to this, suppose for example suppose primary production जब हो रहा था, suppose for example when the primary production was happening, rubbing this होना, suppose when the primary production was happening, suppose approximately I'm saying that इसके पास 100 एनर्जी ये प्रोड्यूस किया, suppose 100 एनर्जी प्रोड्यूस किया, यहाँ से वो suppose 50 अपने लिए यूज कर लिया, बाकी बचा कितना 50, it has given 50 to the primary consumer। अभी प्राइमरी कंज्यूमर को मिला 50, वो क्या करेगा, 50 से सपोज वो 20 अपने लिए यूज कर लिया, बाकी बचा कितना 30, वो 30 दे देगा इसको। द सेम थिंग, इसको मिला 30, तो ये क्या करेगा, 30 से सपोज 10 यूज कर लिया अपने लिए, बाकी बचा कितना 20, इट हैव गिवन टू द नेक्स्ट वन। Similarly, it will keep on going. So from one topic level to the other topic level, as soon as the energy is getting transferred, the productivity is also getting transferred. यानी कि जो सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ था, that was the primary productivity, second जो होगा वो होगा secondary productivity, which is the energy formed by consumers, कंज्यूमर, ओके। ये जो कंज्यूमर जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड थर्ड स्टेज तो वापस आ जाएगा क्या, थर्ड स्टेज में कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ करेगा क्या तुम्हारा, दिस विल बी डूइंग डिकम्पोजिशन। So let me just explain you the whole thing once again. Primary productivity is the energy which is produced at the first level। फर्स्ट लेवल मतलब डायरेक्टली प्रोड्यूसर वाला लेवल, डायरेक्टली ऑटो टॉप वाला लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा। द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन इज जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इक्वल्स टू एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। पहले तो कितना प्रोड्यूस किया, फिर कितना अपने लिए यूज किया, फिर बाकी तो वो पास कर दिया नेक्स्ट जनरेशन में, इट हैव पास टू द नेक्स्ट जनरेशन में पास করে দিয়েছে। तो नेक्स्ट जनरेशन माने नेक्स्ट टॉपिक लेवल माने कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा बाकी बचा हुआ से, हाउ मच इट विल पास, दे विल बी नोन एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड अल्टीमेटली जो डिकम्पोजर होगा वो उसको डिकम्पोज कर देगा, अल्टीमेटली द डिकम्पोजिशन विल बी डन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा तुम्हारा जीपीपी एनपीपी के ऊपर, और तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से क्या, कि who will be producing the secondary primary productivity or primary productivity, ठीक है। एंड नाउ वी विल बी कमिंग टू द डिकम्पोजिशन। यहाँ तक किसी को डाउट है, सेम ही, इफ आई हैव टू रिपीट एनीथिंग, एनी डाउट टिल हियर, होगा ली आतो का
अकुमला, कविका, एनीवन? ओके, चलो, दैट्स गुड। चलो, गोइंग देन, चलो, एकदम क्लियर। अभी डिकम्पोजिशन से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। डिकम्पोजिशन तुम लोग को पता है कुछ भी नहीं, एकदम ब्रेक करना है, सबको तोड़ तोड़ के एकदम छोटा छोटा कर देना है। तो डिकम्पोजिशन किस स्टेज पे होगा? दैट इज जस्ट सिंपल, डिकम्पोजिशन इज डन एट द डिफरेंट स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस और द होल प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन। सबसे पहले क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन। आफ्टर दैट ये क्या होगा? लीचिंग। लीचिंग होगा। सो व्हाट इज लीचिंग? अच्छा, इसको लिख लो यहाँ पे, फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे। लीचिंग में क्या होगा? लीचिंग में वाटर सोल्यूबल, सॉरी वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आर ब्रोकन, जो कि वाटर से होगा, जो कि वाटर में डालने से डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज लीचिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा? बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन। बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन, बायोलॉजिकल मतलब ब्रेकडाउन मतलब बच्चा लोग डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा यूज होगा क्या? बैक्टीरिया। दैट हैव ऑलरेडी सेड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन द वेलफेयर, दे हैव सेड यू हाउ बैक्टीरिया इज यूज्ड टू डू द ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म के बाद आ जाएगा लास्ट नंबर, सॉरी उसके बाद ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस मतलब टॉप लेयर, टॉप लेयर जो होगा उसको हम लोग फॉर्म करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएगा सेना? व्हाट क्वेश्चन विल कम? शुभो, ऋतु, दैट व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन? 1 2 3 4 5 सीक्वेंस पूछ सकता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, और दे कैन आस्क यू व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस, तो यू कैन गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। क्लियर नवीन? तो दिस 5 फटाफट लिख लो। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, दिस इज द 5 प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। ठीक है, लिख लो फटाफट एकदम। डन, हम रबिंग दिस देन, लिख लो फटाफट, तो इसको रब कर देते हैं हम। हम रबिंग दिस, हाँ। अभी आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक लिख दो यहाँ पे, छोटा छोटा इकोसिस्टम में सब छोटा छोटा टॉपिक है, जस्ट एकदम दिस इफ कंसेप्ट इज क्लियर, यहाँ से सबसे इजी इजी क्वेश्चन आएगा। देना जाएगा एनर्जी फ्लो। वन सेकेंड, द सेम थिंग, टॉपिक लेवल जो पढ़ाया था उसको वापस रिपीट करेंगे, वापस रिपीट करेंगे। टॉपिक में क्या था? सबसे पहले था ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के बाद आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेम थिंग्स। उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद आएगा डिकम्पोजर। सेम थिंग आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन, यू कैन। तो एनर्जी फ्लो क्या बोलता है? इट फॉलो अ 10% लॉ। So what is 10% law? 10% law बोलता है क्या? Only 10% of energy will get transferred to the next generation. Only 10%, बाकी वो 90 खुद के लिए यूज करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर इसके पास, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1000 एनर्जी है, तो इट विल गिव ओनली 10%, मतलब 100। ये देगा उसको सिर्फ 10%, 10, ये देगा उसको 1, ये इसको देगा 0.1। Can you get it? So at every generation only 10% of the energy is passing, which is known as 10% law. अगर ये तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन वाज वेरी कॉमन, दैट व्हाई फूड चेन इज नॉट लॉन्ग। फूड चेन इतना लंबा क्यों नहीं होता? ऑलवेज द फूड चेन इज मैक्सिमम 3 to 4 स्टेप। 5 स्टेप भी बहुत कम होता है, 5 स्टेप फूड चेन भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इफ द फूड चेन इज लॉन्ग, फूड चेन इज लॉन्ग, और फूड चेन ज्यादा लंबा होगा, तो जो सबसे लास्ट में रहेगा दे विल बी गिविंग अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना। देखो इसके पास तो था 1000, बट इसके पास हुआ कितना? जस्ट 1। सो इफ द फूड चेन इज लॉन्ग, हु आर present at the end, they will get very less amount of energy. That is why food chain इतना लंबा नहीं होता है। That is why the food chain is not long. Food chain हमेशा छोटा होगा। Why? Because if the food chain is long, then the last individual will not get any energy. Last में जो होगा वो energy उसको
नहीं मिलेगा, दैट इज वाई फूड चेन इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, एकदम क्लियर, 10% लॉ क्लियर, 10% लॉ क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, एक टॉपिक वापस खत्म, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, एक और छोटा सा टॉपिक, इकोलॉजिकल पायरामिड। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन इज मस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, इकोलॉजिकल pyramid. Question is compulsory from this. Question is compulsory every year. One question definitely comes from here. Mark it. ठीक है, अब इकोलॉजिकल पायरामिड क्या है? कुछ भी नहीं, the food chain which I was drawing na, that autotroph, then primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, decomposer, उसको अगर if I do in a graph, if I do the graphical representation, क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। if I do the graphical representation then I will be calling it a ecological pyramid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी इसको कैसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड हाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होगा? सबसे नीचे तुम्हारा होगा, सबसे नीचे जो होगा दे विल बी द फर्स्ट मेंबर, दैट इज द प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और एंड में डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर, ओके ओके, डिकम्पोजर लास्ट में शायद रख देंगे, बट कभी कभी डिकम्पोजर भी नहीं होता। तो चलो एक करके देखते हैं। सबसे पहले पिरामिड देखते हैं, सपोज एक पिरामिड देखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो चलो एक एक्वाटिक इकोसिस्टम तुमको समझाते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्वाटिक मतलब पानी, वाटर। तो वाटर का अगर फूड चेन अगर हमको बनाना होगा तो चलो पहले फूड चेन बनाते हैं, देन आई विल गो। फूड चेन, फूड चेन क्या था? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन था ना बच्चा लोग, फाइटोप्लैंक्टन था, पहले फूड चेन बना लो। उसके बाद क्या था? जू प्लैंक्टन, करेक्ट। उसके बाद क्या था? विवियन, स्मॉल फिश एंड देन बिग फिश, बस खत्म। यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजर को नहीं लेते, वी डोंट टेक डिकम्पोजर इनटू अकाउंट। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश। ठीक, अभी इफ आई ट्राई टू डू द पिरामिड ऑफ नंबर, देखो पिरामिड ऑफ नंबर अगर बनाना चाहे यहाँ पे, मतलब किसका नंबर ज्यादा है या किसका नंबर कम है, तो यू नो ऑलवेज जो जितना ज्यादा छोटा होगा, ऑलवेज दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका नंबर ज्यादा होगा। ऑलवेज द नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विल बी मोर, उससे कम होगा थोड़ा जू प्लैंक्टन, उससे कम होगा स्मॉल फिश, उससे कम होगा बिग फिश। बिकॉज वन थिंग इन इकोलॉजी वी नो, if the size is big their number will be less, okay, and if the size is small, if the size is small their number will be large। so if I count the number, तो यहाँ देखोगे क्या होगा, मे बी सपोज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग यू, मे बी सपोज अगर ये 1000 है, if this is 1000, if this is 1000, maybe it is only 500, maybe it is only 200 and maybe only it is 100। okay, so if I do the graph, if I do the graph will look like this। सबसे नीचे में कौन है? सबसे नीचे में फाइटोप्लैंक्टन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फाइटो, जो सबसे ज्यादा है, इट इज 1000, दैट इज व्हाई इट इज बिग। उसके बाद ऊपर में क्या है? जू, जो उससे थोड़ा सा कम है, दैट इज व्हाई इसका साइज थोड़ा कम है। उसके बाद उसके ऊपर में क्या आया? स्मॉल फिश। उसके बाद ऊपर में क्या आया? बिग फिश। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ विल लुक लाइक, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस फॉर द नंबर। ठीक है, फॉर द नंबर द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। But suppose in the same way if I do the aquatic system not for the number, but यहाँ पे नंबर 2 अगर हम लिख देते हैं for the biomass। बायोमास का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग? बायोमास का मतलब कुछ भी, देयर वेट, उसका वेट कितना है, उसका ड्राई वेट कितना, ऑन द बेसिस ऑफ द वेट इफ आई डू, देखो क्या होगा। अगर वेट इसका निकालेंगे तो बच्चा लोग देखो क्या होगा, अगर उसका वेट निकालेंगे तो देखो क्या होगा। डेफिनेटली फाइटोप्लैंक्टन का वेट सबसे कम होगा, बिकॉज इट इज द माइन्यूट, वेरी छोटा, एकदम छोटा है। तो इसका वेट कितना होगा? मे बी सपोज इसका वेट होगा 1 kg, सपोज इसका वेट उससे थोड़ा ज्यादा होगा, मे बी 2 kg, उसका वेट उससे ज्यादा होगा 5 kg, उसका वेट उससे भी ज्यादा होगा 10 kg होगा ना, बिकॉज दे आर गेटिंग बिगर बिगर बिगर, साइज विल बी गेटिंग इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो इफ आई ड्रू दिस, इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो जो सबसे नीचे में है the graph will become ulta like this। here the phytoplankton जो कि सबसे छोटा, that is why small,
उसके ऊपर में हो जाएगा जू प्लैंकटन, क्यों, उससे थोड़ा बड़ा। उसके बाद आ जाएगा बिग फिश, उससे सॉरी स्मॉल फिश, उससे थोड़ा बड़ा, एंड द लास्ट वन विल बिकम बिग फिश। तो हियर द पिरामिड इज अपराइट, दैट मीन्स इफ यू ड्रॉ द पिरामिड ऑफ नंबर, इट इज अपराइट, मतलब ये अपराइट भी हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, मतलब सीधा है, इट इज स्ट्रेट। बट पिरामिड ऑफ बायोमास कैन ऑल्सो बी उल्टा, दैट मीन्स इनवर्टेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोमास का which is inverted, okay, it is inverted, ठीक है। on which example I'm talking about, हम लोग कौन सा इकोसिस्टम का बात कर रहे थे, aquatic ecosystem का बात कर रहे थे, this is, so when I'm using a aquatic ecosystem I can see that the pyramid of number is upright but pyramid of biomass is inverted. So you have to get this type of question will come, that what is the pyramid of number in terrestrial ecosystem, in grassland ecosystem, just like that वो कोई भी ecosystem दे देगा, and they will ask you what is the pyramid look like, whether it is straight or it is upright, या फिर stable, okay, या फिर irregular, कुछ भी हो सकता है। That means नीचे वाला छोटा है, बीच वाला बड़ा है, फिर वापस छोटा हो गया, it can be anything, okay, on that basis you will be getting a question। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे, then the thing will become very clear to you। तो सबसे पहले right from the beginning I'm going, तो जो पिरामिड है, what I said you the pyramid, I will just explain you, then the thing will become very clear to you। pyramid are three type, one is pyramid of number, नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, pyramid of biomass we can do, and pyramid of energy we can do। ये याद रखना, आउट ऑफ दिस पिरामिड इट कैन बी अपराइट, ये बोथ अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेट कैन ऑल्सो बी देयर, इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी इन्वर्टेड, बट इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये ऑलवेज स्ट्रेट होगा, दिस वन विल ऑलवेज बी स्ट्रेट, याद रखना, ऑलवेज बी स्ट्रेट, पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी स्ट्रेट। नाउ यू विल आस्क मी सर व्हाई, why pyramid of energy is always straight, because it always follow, energy always follow the 10% law, energy हमेशा 10% law को follow करेगा, that means always the producer will have the highest energy, और जैसे जैसे in the food chain I will go upward, the energy will be getting reduced, बोला है ना, फूड चेन में हमेशा एनर्जी रिड्यूस होता जाएगा, दैट इज व्हाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट। बट पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अभी तो एक एग्जांपल तुम लोग को दिखा दिया बच्चा लोग एक्वाटिक में, अभी चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को कि देखो क्या होगा, एक और एग्जांपल दिखाते हैं कि क्या होगा, what can happen in another type of ecosystem। एक तो एक्वाटिक दिखा दिया, एक तो एक्वाटिक दिखा दिया, एक और इकोसिस्टम दिखाएंगे, चलो ट्री को, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। ट्री इकोसिस्टम में देखो क्या होगा, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, whenever the question will come like this, the first thing you have to do is कि दिमाग में बिठा लो कि ट्री में क्या क्या है। चलो नंबर के हिसाब से करते हैं, ट्री का नंबर अभी देखो, ट्री का नंबर जो कि प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो ट्री को कौन खाएगा, ट्री को कौन खाएगा, ट्री को खाएगा सपोज बर्ड, बर्ड को कौन खाएगा, पैरासाइट। तो सबसे पहला चीज तुम लोग को क्या करना है, इकोसिस्टम पहले फूड चेन दिमाग में बिठा लेना है। नाउ यू से मी, किसका नंबर ज्यादा होगा, ट्री का नंबर ज्यादा है या बर्ड का नंबर ज्यादा है, विच इज मोर, ट्री और बर्ड, से मी किसका नंबर ज्यादा होगा, इफ यू काउंट इट, which number is more, the number of tree you can see, definitely the number of bird is more। now the bird is more or parasite is more, who is more, bird is more or parasite is more, डेफिनेटली पैरासाइट। तो यहाँ पे इफ आई से अबाउट द नंबर, नंबर का ग्राफ कैसा होगा बच्चा लोग, नंबर का ग्राफ ऐसा होगा, बिकॉज जो सबसे नीचे में ट्री, उसके बाद है बर्ड, उसके बाद है पैरासाइट। बट इफ आई से अबाउट द बायोमास, बायोमास मतलब उसका वेट अभी करेंगे, तो अभी बोलो वेट किसका ज्यादा है, ट्री का वेट ज्यादा या बर्ड का वेट ज्यादा, हु इज मोर हेवियर, हु इज मोर हेवियर, ट्री और बर्ड, who is more heavier, definitely tree। and about bird and parasite, who is more heavier, bird or parasite, who is more heavier, bird और parasite, कौन heavy है ज्यादा, definitely bird। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्री सबसे ज्यादा भारी है, मतलब सबसे ज्यादा मोटा ट्री होगा, तो ट्री विल बी द बिगर, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्री, यहाँ पे हो जाएगा क्या बर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा क्या पैरासाइट।
ठीक है, समझ में आया? तो तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि विद रेस्पेक्ट ऑफ ट्री इकोसिस्टम, with respect of tree ecosystem, what will be the pyramid of number? तो pyramid of number क्या देख लिया मैंने, it is inverted। तो इस तरीका से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ देगा दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अभी चलो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख लेते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी हम लोग देख लेंगे। चलो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी अभी हम लोग देख लेंगे। हाँ, if I talk about the grassland ecosystem, तो समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन आएगा। if I talk about suppose grassland ecosystem, तो चलो देख लेते हैं grassland ecosystem में क्या होगा। grassland ecosystem, तो सबसे पहले चलो नंबर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमको फूड चेन दिमाग में बना लेना है। ग्रासलैंड में क्या होगा, ग्रास, ग्रास के बाद इसको खाएगा कौन, रैबिट, रैबिट को खाएगा कौन, फॉक्स, फॉक्स को खाएगा कौन, लायन। अभी चलो नंबर देख लेते हैं, किसका ज्यादा नंबर है, हु इज मोर इन नंबर, डेफिनेटली ग्रास, उसके बाद रैपिड, उसके बाद फॉक्स, उसके बाद लायन। तो पिरामिड ऑफ नंबर डायरेक्टली ऐसा जाएगा, ये नंबर है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बायोमास एज वेल, बायोमास एज वेल, अगर हम बायोमास का भी बात करें, बायोमास एक इंडिविजुअल नहीं, बायोमास अगर हम लोग सारा मिला के अगर बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द होल ऑफ द बायोमास, तो बायोमास भी देखना ऐसा ही आएगा। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द ग्रास लैंड, ग्रास आर वेरी बिग, ग्रासलैंड हमेशा बहुत बड़ा होता है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। सो इफ आई टॉक अबाउट द वेट ऑफ द ग्रासलैंड, ग्रास का वेट हमेशा ज्यादा होगा, उसके बाद रैबिट का वेट होगा, उसके बाद फॉक्स का वेट होगा, उसके बाद लायन का वेट होगा। सो पिरामिड ऑफ नंबर भी और पिरामिड ऑफ बायोमास भी यहाँ पे दोनों स्ट्रेट है इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो आई टॉट यू थ्री इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, aquatic ecosystem and tree ecosystem, ये तीनों ही तुम्हारे सिलेबस में है। दिस थ्री आल्सो देयर इन योर सिलेबस एंड ऑल द थ्री आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तो किसमें स्ट्रेट होगा, किसमें इन्वर्टेड होगा, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। कोई डाउट यहाँ पे? आई होप सो रितु इट्स क्लियर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन हैव एनी डाउट हियर? नो, वेरी गुड रुखसाना, वेरी गुड रितु। चलो अभी आ जाएंगे, ये जो फूड चेन बना दिया या फूड वेब बना दिया, तो पहले ही बोल दिया फूड वेब तो होगा नहीं। अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट होने से वापस रिकनेक्ट करना फटाफट, थोड़ा सा और एक टॉपिक बचा है। ओके, तो फूड चेन तो पॉसिबल नहीं है, फूड चेन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इकोलॉजिकल पिरामिड भी पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज इकोलॉजिकल पिरामिड तो हम लोग फूड चेन देख के बना रहे थे, है ना। तो अगर फूड चेन ही पॉसिबल नहीं है तो इकोलॉजिकल पिरामिड भी इज नॉट पॉसिबल टू डू। ये जस्ट theoretical thing है, observation है that we do। As I was saying that your NEET exam may be get extended because अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है and it takes at least 1.5 months to do all the thing, form fill up करना है। After that they will give 15-20 days, then second window will open to do the correction। So maybe your exam will happen as it happened in the last year, उस टाइम पे ही होगा, मे बी द सेकेंड वीक और द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो दूज हु वर थिंकिंग कि नहीं इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी 50-50% दे दो, नहीं, this time you have enough time, and those who are preparing right from the beginning, you have 5 or 6 months, 5 or 6 months is enough to do the NEET preparation। जो सीरियस है, इट इज इनफ फॉर यू टू डू द प्रिपरेशन। अगर अभी सोचोगे अरे अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, तो कभी नहीं होगा। गिव योर 100% टू एवरीवन, आई एम सेइंग यू, एंड मे बी, आई एम नॉट कंफर्म, बट मे बी you will be getting my webinar this week only, this week on Saturday। If it confirm, I'm just getting ready for that। If it is confirmed, I will be sending you the link। जिसको जो भी क्वेश्चन है कि सर कैसे मुझे सीट मिलेगा, सर हाउ आई विल गोइंग टू द कॉलेज, सर कैसे पढ़ाई करें, all that I will be answering in the webinar। It will be a webinar on Saturday। Okay, so get ready if you are interested, and if you want to ask your question, it will be to a Google Meet, be ready for that one। On Saturday there will be a webinar। तो चलो, as I was saying about the ecological pyramid, ये फॉलो किसको कर रहा है, फूड चेन को। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, फूड चेन ही पॉसिबल नहीं है तो इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग क्या क्या देखा, बस चलो वहां पे डिकम्पोजर को कोई पोजीशन नहीं दिया था, सिर्फ हम लोग प्रोड्यूसर बनाया और कंज्यूमर बनाया। दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन, इट डज नॉट टेक सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द टू टॉपिक लेवल। कभी कभी एक स्पीसीज दो टॉपिक लेवल पे भी हो सकता है, मे बी लाइक रैबिट,
रैबिट कैन बी अ प्राइमरी कंज्यूमर एज वेल, सेकेंडरी कंज्यूमर एज वेल, तो वो उसको नहीं देखता है। तो दिस इज सम लिमिटेशन। ये तुम्हारा अगर बोर्ड होता तो ज्यादा जरूरी होता फॉर योर बोर्ड, बट नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट देन ऑल्सो यू राइट इट, हाँ राइट इट। हाँ, लिमिटेशन क्या क्या, फूड चेन इसीलिए नहीं है, डिकम्पोज और नॉट गिवन एनी पोजीशन, काट दो उसको। इट डज नॉट टेक सेंस स्पीसीज बिलोंगिंग टू द टू टॉपिक लेवल। नोट्स हम क्लास के खत्म होने के बाद जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहां से क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर वी विल बी गेटिंग द क्वेश्चन, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। वेरी सिंपल, इकोलॉजिकल सक्सेशन बुक में देखना बहुत ब्ला 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 कुछ लिखा होगा, बट हम इसको एकदम इजी प्रोसेस में पढ़ाएंगे, एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे। सक्सेशन का मतलब कुछ भी नहीं, एक एरिया में एक स्पीशीज के बाद एक स्पीशीज आएगा। जैसे देखो तुम्हारे घर में भी सक्सेशन होता है ना। एट द टाइम क्या था, योर ग्रेट ग्रैंडफादर मे बी he was the main person of the house, he was controlling the house, उसके बाद your grandfather came, he have taken care or taken charge of the family, then your father have taken the charge of the family, maybe you will be taking the charge of the family, after that your son will be taking the charge of the family, just like that in an area. If in an area one after the other a species comes and go, so they take the charge of that area, and that species एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो आता रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। जस्ट देख लो, टेक द एग्जांपल, एज यू आर लिविंग इन वॉट एवर द एरिया यू आर लिविंग, मे बी 200 years बैक एरिया वॉज सेम, नहीं इट वॉज नॉट सेम, slowly and steadily the changes have come, so that changes only is known as ecological succession। एक चीज याद रखना, जो सक्सेशन होगा, जो सबसे पहला, द फर्स्ट इंडिविजुअल हु विल बी देयर इन दैट सक्सेशन इज नोन एज पायोनियर। पायोनियर कम्युनिटी, कम्युनिटी, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, छोटा हो गया। पायोनियर, पायोनियर कम्युनिटी जो सबसे पहला होगा, उसके बाद बहुत सारा स्टेज आएगा, 3 4 5 जो भी होगा, इट विल बी कीप ऑन चेंजिंग 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 चेंजिंग, एंड अल्टीमेटली द लास्ट एक स्टेबल स्टेज आ जाएगा जिसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी, और बीच में जितना भी स्टेज आएगा 1 2 3 4 5 जितना भी स्टेज आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरल कम्युनिटी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, the question will ask you which is the first community that comes, वो पाइनियर कम्युनिटी होगा, ये याद रखना। इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बोल सकते हो मोस्ट अडेप्टेबल, मतलब कभी भी कोई भी चीज जब कोई नया करता है, इफ दे स्टार्ट डूइंग द न्यू थिंग, दे आर द मोस्ट अडेप्टेबल, वो सबसे हार्श कंडीशन में भी जाके रह सकते हैं, दैट इज व्हाट पायनियर कम्युनिटी। मे बी तुम देख लो, तुम खुद ही देख लो, अगर कोई नया एरिया में अगर कोई इनहैबिटेशन होना है, इफ इन अ न्यू एरिया, इफ अ न्यू कम्युनिटी और न्यू हाउस इज गोइंग टू कम, सबसे पहले सब कोई डरता है कि वेदर आई विल मेक माई हाउस देयर और नॉट, वेदर आई विल गो देयर और नॉट। वंस एक इंडिविजुअल चला गया, उसके पीछे 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 सब आ जाता है। हैपेंस ना, is it happens ना or not, huh? So this is the thing, so the first thing is that pioneer community, this is the first community which is very hard and the most adaptable, most adaptable, कोई भी कंडीशन में जाके वो रह सकता है, कोई भी कंडीशन में। तो इट्स द फर्स्ट इंडिविजुअल हु इज कमिंग और फर्स्ट कम्युनिटी हु इज कमिंग इनटू अ सक्सेशन। उसके बाद जितना भी आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको हम लोग बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी, आस्ते आस्ते चेंज होता रहेगा। और क्लाइमेक्स सबसे लास्ट वाला, जैसे सिनेमा में होता है ना क्लाइमेक्स, वैसे यहाँ पे भी लास्ट कम्युनिटी एंड इज द मोस्ट स्टेबल। क्यों इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, बिकॉज ये सबसे लास्ट है, वहां पे जाके खत्म, उसके बाद फिर चेंजेस नहीं होगा नॉर्मली। उसके बाद जब कोई बड़ा डिजास्टर होगा, बड़ा चेंज आएगा, देन ओनली इट विल गेट चेंज, अदरवाइज इट विल रिमेन स्टेबल देयर। ठीक है, अदरवाइज इट विल रिमेन स्टेबल देयर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट कम्युनिटी, लास्ट कम्युनिटी, मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी एंड मोस्ट अडेप्टेबल कम्युनिटी, ये हो जाएगा मोस्ट अडेप्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल। चलो, ये जो चेंजेस है कहाँ कहाँ से हो सकता है, फ्रॉम वेयर इट कैन स्टार्ट, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश वाटर से चालू हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्टी वाटर से चालू हुआ अगर तुम्हारा तो क्या बोलेंगे, एसिडिक वाटर से चालू हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एसिडिक वाटर से चालू हुआ तो क्या बोलेंगे, ड्राई रीजन से चालू हुआ तो क्या बोलेंगे, ओके। एंड बेयर रॉक, मतलब सिर्फ रॉक से चालू हुआ तो क्या बोलेंगे, एंड इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सैंड तो क्या बोलेंगे। फ्रेश वाटर से चालू होने से वी कॉल इट एज हाइड्रोजीरी, हाइड्रोसेरी,
सॉल्टी वाटर से चालू हुआ तो हेलोसेरी, हेलोसेरी सारा नोट्स में है। हाँ, एसिडिक वाटर से ऑक्सैलोसेरी, ऑक्सैलोसेरी। ड्राई रीजन से चालू हुआ तो जेरोसेरी, जेरोसेरी। ठीक है, बेयर रॉक से चालू हुआ तो लिथोसेरी, सारा नोट में है। हाँ, सारा स्पेलिंग चेक कर लेना। साइड में चालू हुआ तो सैमोसीरी। ये तीनों वाटर पे है और ये तीनों ड्राई रीजन पे है। जो वाटर पे है उसको हम लोग हाइड्रैक बोलते हैं, हाइड्रैक। और जो बेयर रॉक से चालू होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेरैक। ठीक है, सारा नोट्स में है, जस्ट सॉरी, सारा नोट्स में है, सारा नोट्स में है, सारा जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। नोट से एक बार लिख लेना बस, ठीक है। और सक्सेशन का टाइप्स भी है, कुछ टाइप्स है। चलो सक्सेशन का टाइप लिखते हैं। टाइप क्या क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सक्सेशन? वन इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? इफ इनी रीजन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार कोई इनहेबिटेशन चालू हुआ। फॉर एग्जांपल दिस इज एकदम बेयर लैंड, उससे पहले कभी भी कोई कम्युनिटी नहीं था, देयर वाज नो कम्युनिटी बिफोर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइफ हैव स्टार्टेड देयर, सबसे पहली बार लाइफ स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो डेफिनेटली व्हेन द फर्स्ट टाइम इज देयर, देयर इज नो nothing which will be found there, it will be a slow process, but because पहली बार वहाँ पे लाइफ चालू हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे कैसा कम्युनिटी था या how the life will start there, what is the food availability there, no one knows, so it is a slow, it is a slow process। यहाँ पे क्या है, पहले लाइफ था but due to disaster everything have got ruined up and the life has started for the second time here। it is a fast process। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई ना कोई कम्युनिटी वहाँ पे था, there was certain thing, there was certain chances of life there, already people know, already community know, already plant know that how to survive here, that is why it is a fast process। यहाँ पे पहले से ही पता है कि यहाँ पे कुछ था, कैसे लाइफ होने वाला है, that is what। so it is the first time life coming here, it is the second time life coming here। ठीक है, एकदम सिंपल टाइप हो गया प्राइमरी सेकेंडरी। अभी हम लोग हाइड्रैक को हाइड्रोजीरी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजीरी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यहाँ पे लाइफ आता जाता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। जस्ट स्टेजेस लिख लो, क्या क्या स्टेजेस, आई विल जस्ट बी राइटिंग द स्टेजेस। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, बाकी डिटेल में नोट में लिखा है। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, नंबर 2 रूट सबमर्ज स्टेज, रूट submerged stage, number 3 free floating stage, free floating stage, number 4 reed swamp stage, reed swamp stage, number 5 sage stage, number 6 scrub stage and number 7 फॉरेस्ट स्टेज। देखो जिसके पास एनसीईआरटी बुक होगा या कोई भी बुक होगा वहां पे ये डायग्राम डेफिनेटली हैव बीन गिवन। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज का मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ लैंड, देयर इज सम वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब ओके समथिंग 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 इज जस्ट फ्लोटिंग। तो ये हुआ पहला वाला स्टेज। रूट सबमर्ज स्टेज का मतलब क्या होगा? सेकेंड स्टेज में क्या होगा? यहाँ पे सर्टेन रूट इज कमिंग फॉर्म, कुछ कुछ रूट फॉर्म हो रहा है बट वो पानी के अंदर में पूरा, दिस इज ऑल वाटर। ठीक है, 3 नंबर में क्या हो रहा है? फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा? कुछ प्लांट फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा, द प्लांट आर फ्रीली फ्लोटिंग। नंबर 3 स्टेज रीड स्वैम्प में क्या हो जाएगा? रीड स्वैम्प में दिस प्लांट विल बी जस्ट लाइक मडी एरिया, मडी एरिया इज देयर एंड दे आर ग्रोइंग इनटू दैट वन। ठीक है, नंबर 5 में दैट सेज स्टेज आई हैव सेड यू, सेज स्टेज आई हैव सेड यू हियर more bigger plant have started growing but still it is watery, it is still watery। scrub में क्या होगा? the bigger plant will be grown and the climax में मतलब पूरा फॉरेस्ट हो गया, पूरा फॉरेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा बच्चा लोग? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? और यहाँ पे तुमको पूछ सकता है विच इज द पाइनियर्स कम्युनिटी। तो पाइनियर कम्युनिटी क्या है? यहाँ पे फर्स्ट कम्युनिटी क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। दे कैन आस्क यू व्हिच इज द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। दिस ऑल आर द सीरियल स्टेज। दे कैन आस्क यू करेक्ट सीक्वेंस दो, दे विल बी गिविंग यू 1 2 5 4 3, मतलब वो उल्टा पुल्टा कर देगा। तो यू हैव टू नो विच इज फर्स्ट, विच इज सेकंड, विच इज थर्ड, विच इज फोर्थ। तो जम्बल्ड वर्ड टाइप क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर। ठीक है, और स्पेशली सबका एग्जाम्पल भी है, नोट में दिया हुआ है एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल रीड कर लेना। फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैव बीन गिवन देयर। तो यहाँ पे सिर्फ तुमको क्या पढ़ना है? व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, व्हाट इज द
सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। लास्ट में हम लोग आ जाएंगे बायोलॉजिकल साइकिल। दो साइकिल है तुम्हारे इसमें, वन इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल आई डोंट थिंक सो तुम लोग को पढ़ाना चाहिए, तुम लोग को सब पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कैसे घूमता है, बताओ तो। सबसे सिंपल चीज सबको पता है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, हु टेक्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कौन लेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को? प्लांट लेगा, लेगा तो कौन से प्रोसेस के लिए लेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए लेगा। इज इट नॉट? फॉर द नोट में दिया हुआ ये सारा, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट लेगा। प्लांट को खाएगा कौन? हु विल बी ईटिंग दिस प्लांट? एनिमल विल बी ईटिंग दिस प्लांट। what will more happen to this plant? The plant will die, they will also die. Okay, after that they will go to the soil, animal will also go to the soil, plant will also go to the soil, and then from the soil it will directly go into the atmosphere, or the plant can also from the fossil soil, fossil बना देगा. Okay, and then it will go into this atmosphere. एकदम simple. So what is the circulation of carbon dioxide? यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, but then also I explain you. You all know this, that atmosphere का carbon dioxide it is taken by the plant by the process of photosynthesis. Very simple. Then from the plant is eaten by the animal or the plant will die. They both will go to the soil after dying, or plant can directly from the fossil. So whether it is the fossil or whether it is the soil, it is being once again free and gone into the atmosphere. ठीक है, ऐसे भी जाएगा, अब प्लांट से रेस्पिरेशन भी होगा, when it will be doing the respiration then also it will be going there. So this is how the atmospheric carbon dioxide is rotating. Very simple. यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, but this you have studied in your EVS portion as well. EVS में भी पढ़ा होगा, सब में पढ़ा होगा. क्वेश्चन आता है तुम्हारा कभी कभी फोस्फोरस साइकिल से, फोस्फोरस साइकिल से कभी कभी क्वेश्चन आता है. लेट मी जस्ट ड्रॉ यू द फोस्फोरस साइकिल. सबसे पहले फोस्फोरस आता कहां से? फोस्फोरस इज कमिंग फ्रॉम द रॉक, राइट इट. रॉक विल डू वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब क्या? ब्रेकिंग. व्हेन द रॉक विल ब्रेक इट विल गो इनटू द सॉइल. जाएगा ना बच्चा लोग? व्हेन द रॉक विल ब्रेक इट विल गो इनटू द सॉइल. ठीक है, सॉइल. तो ये सॉइल से लेगा कौन? सॉइल से ले लेगा तुम्हारा प्लांट. प्लांट विल बी टेकिंग, plant will be taking the soil. What will happen? The plant is eaten by the animal. The plant is eaten by the animal. Yes or no? The plant is eaten by the animal. ठीक है. The plant will also die. The animal will also die. After their death, what will happen? They all will go to the soil. So you can see how the thing is happening. rock से weathering हो गया, मतलब break हो गया soil में, soil से गया plant में, plant is dying, animal is dying. This is also happening. So this is how the phosphorus cycle is happening. ये आता है तुम्हारा. And specially एक important terminology है. This phosphorus is going into the rock also by some time excretory material of bird which include huge phosphorus. बहुत ज्यादा phosphorus होता है in the excretory material of birds, which we call as their excretory material we call as guano. Question में come, Sena, what is guano? Guano is the excretory product of the bird which is adding to the phosphorus. ठीक है. So that's all we have into the chapter. We have completed the chapter. 2 chapters of the ecology is done. Baki the remaining chapter of the ecology will also be completed into the next 2 days. अभी बोलो, notes I'm sending you. किसी को कोई doubt है तो बोलो. If anyone have any doubt in any of the portion that I have to do repeat, मुझे बता देना. I'm already sending you the note. Note अगर करोगे तो note से already बहुत कुछ clear हो जाएगा, and there will be no problem there. Okay, clear? So that's all for today. Okay, on that note I will be ending the class. If anyone want to ask me, you can text me, you can say me. Okay, so on that note I am ending the chapter. Question practice के लिए already I have sent you. You just go with that. Okay, चलो, bye bye everyone. Then I'm ending the class. चलो, bye bye Rishi, Ruxana, Namita, Mendi. चलो.